اور آج ہمارے والد محترم صاحب کا یوم پیدائش ہے، اور اس موقع پر ہماری استاد سابق صدر شعبہ اردو کاشی ہندو وشو ودیالیہ آپ لکھنؤ سے چل کے آئی ہیں۔ میری آج اس کتاب کا اجرا تھا اور بھارت کلا بھون BHU سیمینار ہال میں، اور اب یہ ہمارے گھر پر ہیں اور سویرے 5 بجے آپ کی ٹرین ہے۔ اور بس یہ آج کا پروگرام کیسا لگا، آپ ذرا سا ہم لوگوں کے لیے اظہار خیال پیش کریں۔ ہاں، آج کا پروگرام ماشاء اللہ ہر طرح سے کامیاب تھا۔ مطلب جو اس کی معنویت تھی وہ بھی اپنی جگہ پر بہت کامیاب تھی، اور جو ظاہری طور پر جس طرح سے اس کو اہتمام کیا گیا تھا، اس کا انتظام کیا گیا تھا، وہ بھی اپنے آپ میں بہت زیادہ اچھا تھا۔ اور جو خاص طور سے جو لوگ آئے تھے وہ سب اردو اور ہندی والے، اور ایک سب سے اچھی بات یہ تھی کہ ڈائس کے اوپر 4 عورتیں تھیں۔ آپ کے جو مہمان خصوصی تھے وہ سب عورتیں ہی تھیں، الا ڈائریکٹر آپ کے کلا بھون کے، اور باقی سب عورتیں تھیں۔ اور جو شرکا تھے ان میں بھی کافی بڑی تعداد عورتوں کی تھی، اور ظاہر یہ اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ عورتیں تعلیم میں اور تربیت میں اور ملازمتوں میں کافی اچھی تعداد میں سامنے آ رہی ہیں، سامنے بلکہ اچھے کام کر رہی ہیں، اچھا نام پیدا کر رہی ہیں۔ تو اس میں 2 رجسٹرار بھی تھیں اور میں بھی تھی، اور ان کی سابق جو سرپرست تھی پروفیسر رفعت جمال۔ تو اور جو لوگوں نے اس پر اپنے تاثرات کا اظہار کیا وہ بہت اچھے اور بہت متوازن اور بہت مطلب خوش آمدی نہیں تھے، کم از کم جیسے بھی تھے خوش آمدی نہیں تھے، حقیقت پسند تھے۔ تو اس لیے جو لوگ آئے تھے وہ خوش رہے، مطمئن رہے۔ اور اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے کہ جو عموماً لوگ تھیسس لکھتے ہیں اور اس کو چھپواتے ہیں تو اس کا پبلکلی اس کا اجرا ہونا چاہیے، تاکہ ایک خاص موقع پر کم از کم 100-200 آدمی جو ہیں وہ اس کتاب کو دیکھ سکیں، سمجھ سکیں، تو وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا اشتہار ہو جاتا ہے کہ وہ زبانی مشتہر ہوتی رہتی ہیں وہ چیزیں۔ تو یہ ضرور ہونا چاہیے۔ اس لحاظ سے یہ بہت کامیاب رہا آج کا پروگرام۔ شہر کے تمام لوگ اور جو جتنے ریٹائرڈ ٹیچر تھے، ایون ریٹائرڈ آفس اسسٹنٹ تھے، وہ سب لوگ موجود تھے، اور بڑی تعداد ڈگری کالجز کے ٹیچرز کی آئی تھی۔ اس میں اردو ہی کے نہیں کئی سبجیکٹ کے لوگ موجود تھے، یہ بڑی بات ہے نا۔ ہم لوگ خود بھی جو کچھ اردو کے لیے بولتے رہتے لیکن کرتے کچھ نہیں، تو کسی حد تک ذمہ داری ہماری بھی ہے کہ ہم اردو کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ یہ کتاب آپ کی نظر میں کس حیثیت سے ہے؟ یہ کتاب ایسی ہے کہ جو کچھ بھی وہاں موجود ہے اس میں اردو کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جس سے ہم لوگ واقف ہی نہیں ہیں۔ اس سے پہلے 2-3 کتابیں چھپی، ایک تاریخ بنارس 3-4 جلدوں میں لکھی گئی، اور دوسری کتابیں وہ تھیں جو کلا بھون سے متعلق تھیں اردو میں، وہ بھی تھیں، لیکن وہ کتابیں عام لوگوں تک پہنچنا یا ان کا خریدنا، ان کے بس پڑھنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ لیکن یہ کتاب اپنے ضخامت کے اعتبار سے اس نے کلا بھون میں جس طرح کی اردو کی کتابیں ہیں، وہ مواد ہے، وہ ذخیرہ ہے، وہ سب اور یہ بہت مطلب کہنا چاہیے بیش قیمت، لوگ کہتے ہیں بیش قیمت نہ، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں لگا سکتا۔ یہ وہ چیزیں انمول ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا، بیش قیمت بھی نہیں ہے یہ، کیونکہ ایک ایک کتاب اس میں اب مثلاً مغلوں کے فرامین اوریجنل رکھے ہوئے ہیں، آپ لا کے دکھائیے کہیں، آپ کسی یونیورسٹی میں اس طرح کا دکھا دیجئے جو ان کے یہاں بنا ہوا ہے آڈیٹوریم، وہ نہیں بنتا ہے، کہیں آپ کو اس طرح ملے گا ہی نہیں ہے۔
इंतज़ाम, लेकिन इनकी किताब का इंतज़ाम भी अच्छा था, एहतमाम भी अच्छा था, और जो शायकीन थे वो भी बहुत ही बाज़ौक़ किस्म के लोग थे। उसमें उर्दू, हिंदी और मुख्तलिफ़ ज़बानों के मुख्तलिफ़ शोबों के लोग थे, लेकिन सब दिलचस्पी रखने वाले अदब से और अपने पुराने ज़ख़ीरे से और अपनी तहज़ीब से, क्योंकि वो हिंदुस्तान की तहज़ीब दुनिया की चंद कदीम तरीन गिनी चुनी तहज़ीबों में से एक है। यहाँ जितने कदीम तहज़ीब के नमूने मिलते हैं आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। जदीद ममालिक तरक्की करके साइंस और टेक्नोलॉजी में कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन जो ज़ख़ीरा, जो दौलत हमारे पास है हिंदुस्तान में, कोई मुल्क उसके पास खड़ा नहीं हो सकता। और इसी लिहाज से जो ये यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने इसको कायम किया है, वो भी आपको किसी यूनिवर्सिटी और किसी भी इदारे में नहीं मिलेगा। ये वाहिद यूनिवर्सिटी है, वाहिद यूनिवर्सिटी है। और ये बराह रास्त उन्होंने, ये मालवीय जी ने जब ये यूनिवर्सिटी क्या कॉलेज कायम कर रहे थे, पहले तो ये कायम कॉलेज था, यूनिवर्सिटी थोड़ी थी, तो जब कायम कर रहे थे तभी कुछ लोगों ने इनको दिया कुछ के लीजिए आप ये किताबें हैं, ये रख लीजिए, ये देखिए, ये वहाँ से फ़रामीन मिले, ये रख लीजिए। तो मालवीय जी ने उसको बतौर एक रिकॉर्ड के, अपनी तहज़ीब और कल्चर और क़दामत के रिकॉर्ड के तौर पर उसको महफूज किया था, और एक कमरा दिया था कि इसमें इस तरह की चीज़ें रख दिया करो। लेकिन वो बढ़ते आज उसका दुनिया में कोई जवाब नहीं है, और ख़ास तौर से कोई तालीमी इदारा तो पूरे हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया में नहीं खड़ा हो सकता है जिसके पास इतना कीमती ज़ख़ीरा हो। इतना कोई थोड़े दिनों बाद उसको बदल दिया करते हैं। आप जब भी जाइएगा आपको सेटिंग एक सी नहीं मिलेगी। कभी ये फ़रामीन बदल देते हैं, कभी ये चीज़ें बदल देते हैं, कभी ये मिले हुए पत्थर, आज तक बहुत से पत्थर पढ़े ही नहीं गए कि उस पर लिखा क्या है, वो बहुत ओल्ड एज के हैं। तो इस लिहाज से ज़ाहिर है कि इसकी कीमत का या उसकी अहमियत का कोई मोल नहीं, कोई अंदाज़ा नहीं है। आप ये और उसको इनको रेशमा समेटा भी बहुत अच्छी तरह है, तो इसलिए इसकी वैल्यू किताब की बढ़ जाती है कि आपको बहुत ज़रा सा इसमें मिलता है, बहुत थोड़ा सा एक उर्दू से मुताल्लिक़, लेकिन उसके बावजूद आप इसकी अहमियत समझिए क्या है। क्या इस किताब से अदबी गोशा फैज़याब होगा आपकी नज़र से? क्या इस किताब से अदबी गोशा फैज़याब होगा? हाँ, यकीनन होगा, क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं है। इसमें बहुत सी जो मसनवियाँ वग़ैरह हैं, उनके जो पुराने नुस्खे हैं या पुराना मतन है, वो अगर आप देखें इस वक्त तो बहुत मुख्तलिफ है आज की ज़बान से वो मतन। अगर उस मतन में आप ये देखिए तो पुराने ज़माने में हमको न एराब की ज़रूरत होती थी, ना औक़ाफ़ की ज़रूरत होती थी, ना हमको सही इमला की ज़रूरत होती थी। आप मसनविया वगैरह उठा के देख लीजिए, बुलगान नसीब, शेरुल बयान, ज़हर इश्क़, ये जो इसमें है ज़हर इश्क़, अगर आप उसको पुराना नुस्खा जो कला भवन में किसी को दे दीजिए तो वो सही उसको पढ़ नहीं सकता, क्योंकि उसमें ज़बान की सेहत का ख़याल ही नहीं रखा गया है। आप इसमें भी दिए हुए हैं, आप इसको कभी पढ़ के देखिएगा, जब तो आपको मिल जाएंगी वो चीज़ें। दूसरा वॉल्यूम जो आ रहा है उसमें मतन है, और उसमें मतन है, आप देखिएगा। और ये देखिए कि इसमें जो सिक्के हैं, कदीम सिक्के, उस वक्त के जब पत्थर के सिक्के चलते थे, तब चांदी और सोना और अलमुनियम और लोहा कुछ नहीं था, उस वक्त के सिक्के इसमें मौजूद हैं। इसका कोई आप जवाब कहीं नहीं ला सकते, कहीं नहीं लाते। इस लिहाज से बहुत अहम चीज़ है, और ये काम भी बहुत अहम है, और क्योंकि उर्दू से मुताल्लिक़ है उसलिए इसने उसकी अहमियत को बहुत बढ़ा दिया है। ये फरमा है ना, ये दूसरा इसका जो वॉल्यूम आएगा तो उसमें मेल ज़ख़ीरा है ना, उसमें जो मिले हुए मुसव्वदे और उन सबों का मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम जो है तभी कामयाब हो गया था जब इस प्रोग्राम की सदर यानी डॉक्टर कमर जहाँ ने ये हिम्मत दिखाई कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये स्टेशन पहुँची और ट्रेन मालूम हुआ कि ट्रेन सुबह ही में इनका टिकट था, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी।
6 बजे ये स्टेशन पहुँचे और 6 बजे स्टेशन पहुँचने के बाद मालूम हुआ कि ट्रेन जो है वो मॉर्निंग में 6 बजे थी और फिर फ़ौरन इन्होंने टिकट का इंतज़ाम करवाया, 10 बजे की ट्रेन ली और पूरी रात सफ़र करके ये 7 बजे प्रोग्राम में ये बनारस पहुँची और 1 घंटे के बाद ये प्रोग्राम में हॉल में पहुँच गए। तो मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम तभी कामयाब हो गया था। जी जी जी। और दूसरी बात है कि भारत कला भवन जो टॉपिक है, जो मौजू है, इससे अगर इस टॉपिक का नाम आप लेंगी तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग ये सोचेंगे कि ये किसी तारीख यानी हिस्ट्री का रिसर्च पेपर होगा। तो उर्दू के तहकीक का दायरा भी इससे बढ़ता है कि उर्दू में ऐसे मौज़ूआत को भी शामिल किया जाना चाहिए जो तारीख़ी हैं या जो किसी दूसरी ज़बान के हैं, उसमें भी उर्दू तहकीक का दायरा जो है वसी हो रहा है। तो ये प्रोग्राम वैसे बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे लोग भी आए, बहुत कामयाब लोग भी उसमें मौजूद थे, बहुत पुराने लोग भी मौजूद थे। तो मुझे भी ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम सभी को मदऊ किया और इस बेहतरीन प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। बहुत शुक्रिया। अपने हिसाब से एक नई तरह का प्रोग्राम था। हाँ, रिवायती किस्म का नहीं था, बल्कि एक अलग तरह का था जिसने किताब की भी